Welcome back to my channel. In our previous video we talked about constitution and constitutionalism. Today we are going to talk about different forms of government, that is unitary form of government and federal form of government. So without wasting any further time, let's start. Federal form of government or federalism, there is duality of government along with separation of powers, which means that the government is divided into two parts, center and state. जो सेंटर है वो नेशनल मैटर से रिलेटेड इश्यूज़ पर लॉज फ्रेम करेंगे, फॉर एग्जांपल डिफेंस एंड फॉरेन रिलेशंस. जो स्टेट है वो लोकल मैटर से रिलेटेड इश्यूज़ पर लॉ फ्रेम करेंगे, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल, एजुकेशंस. In federalism, there is a clear separation of power between center and state. Now the question is, ये separation of power करता कौन है? इससे आते हैं हम अपने next point पर. Written constitution and supremacy of constitution. तो फेडरलिज्म में एक written constitution होना बहुत ज़रूरी है along with supremacy of constitution. मतलब जो constitution है it is supreme law of the land and it is going to be binding on all the branches of the government, namely executive, legislature and judiciary. All these branches are supposed to act in accordance to the provisions of the Constitution. Following the provisions of the Constitution is essential in federalism. There is also rigidity. There is a proper framework that needs to be followed by the different organs of the government, and they cannot exercise powers beyond what is given in the Constitution. Federalism strikes at arbitrariness. No organ of the government is supposed to exercise arbitrary powers and go beyond what is written in the Constitution. Now on the other hand, there is unitary form of government where there is centralized form of power. जितनी भी पावर हैं वो सेंटर के पास सेंट्रलाइज्ड है. इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देयर इज़ नो स्टेट और लोकल अथॉरिटीज़. वो डू एग्जिस्ट बट उनकी कोई अपनी सेपरेट पावर्स नहीं होती. जितनी भी पावर्स लोकल अथॉरिटीज़ और स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है वो उनको सेंटर से मिलती हैं. इन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर कैन बी ओनली वन कॉन्स्टिट्यूशन. अब ऐसा क्यों बोला गया है? देखो, फेडरलिज्म का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अमेरिका. अमेरिका में फेडरलिज्म स्ट्रिक्ट सेंस में फॉलो करी जाती है, बट इसके साथ साथ अमेरिकन स्टेट्स के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी है अलॉन्ग विद द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द एंटायर कंट्री, विच इज़ ऑफकोर्स सुप्रीम लेक्स. बट अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी है, तो मतलब वहाँ पे दो कॉन्स्टिट्यूशन है. इसके साथ साथ वहाँ के सिटीजन्स के पास ड्यूअल सिटीजनशिप भी है, जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पॉसिबल है. यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर इज लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज ऑल द पावर इज सेंट्रलाइज्ड विद द सेंटर. सी ऑल द डिसीजन मेकिंग इज डन बाय द सेंटर अलोन. द पावर which the state or local bodies have is assigned to them by the center itself. Now comes the most important question, whether India follows unitary form of government or federal form of government. The first article of the Constitution itself states that India, that is Bharat, shall be a union of state, not a federation of state like US. In India, we follow dual system of government. We have central government and state government. We also have separation of powers between central government and state government. Along with that, we also have separation of powers between the different organs of the government, that is legislature, executive and judiciary. India has a written and rigid constitution. The principles of the constitution are such that they cannot be changed very easily. The provisions to changing the or amending the constitution are given under Article 368 of the Constitution. The 7th schedule of the Constitution, 3 lists are given. उन 3 लिस्ट में सेंटर और स्टेट की पावर्स डिवाइड करी गई हैं. एक सेंट्रल लिस्ट है जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज फ्रेम करती है, दूसरी स्टेट लिस्ट है जिस पे स्टेट गवर्नमेंट लॉज फ्रेम करती है, और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट जिस पे सेंटर और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट लॉज फ्रेम कर सकती हैं. अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली फेडरल है? सो द आंसर इज नो. इंडिया इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट करती है. जो आर्टिकल 245 है वो एक रिपग्नेंसी क्लॉज है जो कहता है कि अगर स्टेट के बनाए हुए कोई भी लॉज आर इन कॉन्ट्रावेंशन टू सेंटर के बनाए हुए कोई भी लॉज के साथ, जो सेंटर के लॉज है वो सुपरसीड करेंगे स्टेट लॉज के ऊपर.
आर्टिकल 253 के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे मैटर्स पर भी लॉज फ्रेम कर सकती है जो स्टेट लिस्ट में फॉल करते हैं इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स को इन्फोर्स करने के लिए। इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के मैटर्स पर भी लॉज फ्रेम कर सकती है अगर नेशनल इंटरेस्ट में ऐसा करना ज़रूरी है। स्टेट्स लार्जली डिपेंड ऑन फंड्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट्स हैं दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, उनको फंडिंग बहुत हद तक सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट कभी भी नई स्टेट्स बना सकती है और एग्जिस्टिंग स्टेट्स की बाउंड्रीज चेंज कर सकती है। The President of India appoints the governor for each state and he works according to the president even at the cost of the state। एंड गवर्नर साथ के साथ कभी कभी कुछ ऐसे लॉज होते हैं जिनको वो प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेजता है और ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट उन लॉज पे अपना असेंट दें। तो अभी हमने देखा कि इंडियन गवर्नमेंट में दोनों यूनिटरी और फेडरल फीचर्स इंक्लूडेड हैं। तो कहने को तो इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री विच ऑल्सो हैज़ यूनिटरी फीचर्स।